ठीक है. Okay, this has started. Chalo, my It's first guess starting. is my namesake Anuj. Anuj is from Sweden. Sweden is a Yes, very sir. beautiful country, Anuj, isn't it? Yeah, right now it's getting cold. Oh yeah, yeah, must be. Yeah, this is It's October October, now, so autumn is approaching. So you guys don't have fall? No, nothing like fall there, or only autumn? yeah, it's like right now it's the season, but it Okay. starts getting colder and colder now, day by day. Every Huh. week, the temperature will drop by You guys are very couple close of to North degrees. Pole, isn't it? Very close to North Pole area. How I far? relatively, but it's like if I North Pole, no. So we have to travel a bit, but Well, a it's bit. not too far. I mean, Yeah, I mean mm, compared to yeah, okay, it's not too far. yes, it's not too far. So must be getting very cold in the winters. How like low do you go in terms of centigrades? Winter in my city, it doesn't get that much cold, like hardly -5 degree. I mean, it's cold, but relatively, I'm saying. -5. Delhi gets like 3 degrees centigrade, so we don't get Yeah, into minus, but then but this minus is a the, different ball the game. Minus yes, five is not that bad actually. It's pretty no, but I close. tell you, sir, what the problem is. I live in a city called Helsingborg, but it's a Okay, coastal city, and even okay, in -5 degree, it's strong wind yeah, here, because you must be so having you gale feel and like wind and what. -30. Oh yeah, and Atlantic Ocean is like known for this gales and winds and whatnot. So Yeah, so it's like the south. It's like it's most crowded part of Sweden, south part, yeah, because the weather during the summer, all through the year, you get most heated. I mean, warmer days in the yeah. south. So Huh. most of the people are The here in other south. day I was talking to a friend in Germany and he was telling me it was pretty hot there. Actually, it's like 42 degrees Mm. Celsius up. I said, my God, that's almost like being in Delhi. Yeah, So, Delhi or Ahmedabad. But last year it became 46 or 47 in south oh of France. goodness. Oh my goodness. Yeah. So many people died. Many people have never experienced this much heat. It has never gotten that warm. So Yeah, climate that's is incredible. changing. I mean, I climate is remember changing. there was a time if you cross 35, people would die or Mhm. would just drop down like flies because 35 is Yeah. too much to bear for people in Europe. You know, it's too hot Yeah, for them. even in Sweden, if it gets 28, 30, you will feel the Yeah. heat like 45 degrees in Delhi. Oh yeah. And you don't have Because fans and all that. Suppose if they like you get that oh much no, like, heat, you will. you don't There have is fans, you one don't have windows, you don't have, I mean you do hardly have windows, never. but then Window. hardly ventilation is pretty You bad will compared to rarely see fans here because it's like yes. summer. It's nice and windy. It's warm, but it's nice and windy. So people just open their windows. Rarely you will Yeah. see find your AC. Yeah. AC, I So think I never saw AC in England or anywhere like in Europe. In America, I no, never saw any air no. conditioning But actually. do some people do have it, but Maybe in not some as other parts, common as America is our big, so you country. probably there you have in some part. But Sweden, I'll be very surprised. I mean, the Scandinavian countries are I'm known to be like for the cold weather. Yeah, they are. They are. I mean, all through there. But summers are really nice. They can get hot as well. That's हाँ the beauty. और So you will feel the heat. हाँ All चलिए right, बताइए sir. अनुज अनुज बताइए what any question you want to ask देखिए me सर, about सबसे हाँ पहले तो एक चीज एडमिट करना पड़ेगा. मैंने हम्म, बहुत ट्राई किया, लेकिन आपका बुक यहाँ तक शिप नहीं कर पाया, या फिर मैं लेजी था. तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब में अनुज धर लिख के जितने भी वीडियोस आपके 1.5 घंटे से ज्यादा लंबे सेशंस जो मिलते हैं ना, हाँ वो सारे देखते कि कुछ चीज आपने एक सेशन में नहीं बताई होगी तो कुछ चीज आपने दूसरे सेशन में बताई होगी. सारा बताना उस करके पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा हो जाता है तो तब फिर तो हाँ वही लेकिन बुक तो मुझे कैसे भी करके, नहीं तो कुछ एक दो दोस्त को नहीं उसका मतलब बुक दो का लगा. बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी अपने फ्रेंड को बोलो इंडिया में उसको ले ले वैसे तो अवेलेबल है अमेजन अमेरिका में अवेलेबल है तो आई एम श्योर दिस शुड बी नो प्रॉब्लम बट यहाँ पे मेरी अमेजोन नहीं है सर, अभी okay डिलीवरी भी नहीं करता. अभी खुल best रहा है, thing अभी you can चालू हो do रहा है is उनका to काम. ask somebody who's there and once you go back to come back बट to सर India कोई हाँ डिजिटल वर्जन का कोई ऑप्शन नहीं है. डिजिटल का नहीं. ऑप्शन मैं नहीं डालूंगा क्योंकि डिजिटल को चोरी करना बड़ा आसान है मैं उसको आज अच्छा, डालूंगा परसों ये निकल तो जाएगी अच्छा तो कभी सोचा ही नहीं. अच्छा, आज इसलिए नहीं डालूंगा होता है. अभी हाँ, आज बड़ी बड़ी डालूंगा सीधी और सी बात है. वो हाँ, लोग मुझे बहुत सवाल पूछते हैं बार बार कि वो डिजिटल हाँ, क्यों नहीं आया मैंने कहा बेटा मैं डाल दूंगा आपको ताकि आप 4 दिन में उसको निकाल लोगे वहां से ना तो डिजिटल में कोई हाँ, एक सेकंड में निकल जाता है डिजिटल में आई थिंक हाँ, इट्स सही है. अनसेफ सो आई वांट इट इन प्रिंट एंड आई विल टेल यू दिस बुक कनंड्रम is meant for reading in print. It's pretty thick. A lot of हाँ, you know लेकिन and lot वो of तो है cross सर, references. बुक पढ़ने में ये तो क्या था, मजबूरी की वजह You से मैंने cannot, you पूछा, वरना cannot. I mean, I personally like Kindle. I have the Kindle devices. The point is, I cannot read a dictionary on Kindle, isn't it? So this is या something cross सही है. references and there are a lot of images, documents, etc. Pretty thick in size. So this is something which you need to relish in print, fine print. This book. So whenever you come back to the India, I mean, you will obviously come No, after. sir. I'm not going to wait that long. I'll find a way to get the book here. Or somebody's Because coming I don't know. from I have that to ask a your friend. part हाँ उनको वो
tell those friends to, you know, pick it up, and then they can just ship Yeah, it to you. I have to get it shipped like Because that. these videos are no, you know, those they are hardly the, you know, substitute for the real thing, which is the book, because there's so many things. It's a very, you know, topic is so detailed and complex, and people have forgotten about it. And then another problem which I keep confronting, people have so many misconceptions about it. They have a lot of preconceived notions about it. So they tend to assume, for example, people think I'm a Bengali, so they will, you know, Yeah. accordingly they will form their mind, and they ask me questions and so on and so forth. So this is how it is. And lo and But behold, no, I put out my message, on Facebook and Twitter, and you are my first guest, and you are from Ahmedabad. I mean, of course, Sweden right now, but you're from Ahmedabad. So Yes, that's sir. how it. So I'm kind of bit of an embarrassed because let's say I'm not comparing myself, but I would not consider myself educated enough on the subject, but interested enough to put some question. But I won't take much of your time. I'll just put one. No, One you of the can. I sections. mean, right now, I'm here to test, so to speak, but I'm having a session. Okay, so okay, okay, okay. Go ahead. So one अभी of the बहुत से लोग sessions. मैंने फ्लैश कर दिया है मैसेज उनको मैंने, तो आई थिंक फेसबुक में वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि एक अच्छा। मैंने लिंक डाला हुआ है, आपको लिंक में क्लिक करना है, देन यू कैन जॉइन मी. तो हाँ, लेकिन अभी click- राइट नाउ अभी सिर्फ एक अनिर्बन का है, अनिर्बन ने लेकिन कैमरा ऑन नहीं किया हुआ, तो मैं बिना कैमरा ऑन के मैं गेस्ट को लूंगा नहीं. उनको फायदा मतलब ये एक- बिना mute के. मैंने आपका तो- ट्विटर लिंक फॉलो किया सर, सिंपल है, उसमें लिखा हाँ, हुआ है ट्विटर साहब, में डाला, मैंने क्रोम ट्विटर या में डाला, फायरफॉक्स मैंने ब्राउजर लगाना है। मैंने फेसबुक पर डाला, और ये फेसबुक में लाइव जा रहा है, तो वहां पे लोगों को देखना चाहिए कि एक लिंक है, उसमें क्लिक करेंगे, सो दे कैन कम. आई कैन सेलेक्ट सम ऑफ देम, आई कैन नॉट टेक ऑल ऑफ देम, बट राइट Yes. नाउ मेरा कोई सिवाय आपके और अनिर्बन के कोई नहीं है. अनिर्बन को मैं अंदर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अनिर्बन का वीडियो अभी ऑन नहीं है, तो उसका अच्छा, वीडियो ऑन अच्छा, होगा तो उसका- क्योंकि जब लिंक क्लिक करते हैं ना, तब सेटिंग्स पूछते हैं, माइक और कैमरा, क्या आपको अलाउ करना है सब। most और people are फिर going to use most people are going Yeah. to use their cell phone, so it's Yeah. not a big deal in that cell phones actually. No, सही है। ठीक है, बताइए. एक सर मुझे एक बात इतनी मतलब इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि मैं आपका तो मैं यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं राजीव मल्होत्रा जी को पढ़ता हूँ, फिर मारिया विज जी उनको भी पढ़ता हूँ. तो एक आपके सेशन में मैंने बात सुनी थी कि जब बाबा जी ऐसे अज्ञातवास में थे, तब ही यूज्ड टू डू tantra. I mean, he used to practice tantra, and he got very much involved in it, and he could do some things. I mean, so उसके बारे में मतलब ये था कि सर बहुत फैसिनेटिंग लगा मुझे. फिर मैंने सोचा कि the story is more about him. ये ठीक है, ये इंटरेस्टिंग टिडबिट लग रहा है, फैसिनेटिंग है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारी जो जिससे हमने बुक में उसे कैसे हैंडल किया, हमारा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए कि मैं आपको ये बोलूँ, या मैं मान लीजिए कल को मैं जाता हूँ कलकत्ता में, ठीक है, और वहां जाके किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है, और वहां जाके मैं बोलता हूँ कि यार ये गुमनामी बाबा जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, और गुमनामी बाबा ने बोला था कि अब्राहम लिंकन का घोस्ट व्हाइट हाउस में आता है. अच्छा. तो जैसे मैं ये बात बोलूंगा कि गुमनामी बाबा ये बोला था कि अब्राहम लिंकन का घोस्ट व्हाइट हाउस में आता है, तो 4 प्रोफेसर और स्टूडेंट खड़े होकर मुझे बोलेंगे कि आप तो पागल हो. वो भी पागल होगा, क्योंकि भूत तो होता नहीं है. साइंस तो किसी भूत को नहीं मानता ना. साइंस तो इन चीजों को नहीं मानता. देयर इज नो प्रूफ कि है कि नहीं, एविडेंस नाम की नहीं है, कोर्ट नहीं मानेगा, एकेडमिक्स नहीं मांगेंगे. तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि पागल है, ये तो पागलपंती की बातें करता है. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर क्रेडिट कर देंगे सर, बताऊं कि बेटा कभी रोनाल्ड रेगन का नाम सुना जिंदगी में, अमेरिकन प्रेसिडेंट. जी बोला इसके बारे में, चर्चिल ने भी बोला इसके बारे में, तो दुनिया के टॉप लेवल के लोगों ने बोला. तो जब सडनली मैं उनको नाम लूंगा कि साहब रेगन ने बोला है, तो बोलेंगे अच्छा रेगन साहब ने बोला था, तब सडनली हो जाएगा ना. भारत की अपनी हमारी जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि राजस्थान में कोई महात्मा बाबा जी थे, मर चुके हैं 10 साल पहले, लेकिन अभी भी उनका आता है और वो मुझसे मिलाता है. तो उसके बारे में मीडिया में लिख रहे हैं कि बड़ी स्पिरिचुअल है वो. आप बोलोगे तो बोलेंगे पागल है. हाँ, तो सही है. स्पिरिचुअल बताते हैं, दूसरे को पागल बताते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपका सोसाइटी में स्टैंडिंग क्या है. अगर मैं बाहर बैठा हूँ, बड़ा आदमी हूँ, मेरा बहुत बड़ी स्टैंडिंग है, तो वट एवर थिंग आई से पीपल विल बिलीव इट. जो बातें जग्गी वासुदेव बोल रहे हैं अपने सदगुरु, उस तरह की बातें मम्मी बाबा ने बोली है बहुत सारी. लेकिन अगर मैं वो साइड करूंगा तो लोग बोलेंगे पागल था वो, ये तो पॉसिबल नहीं है, साइंस में मानता नहीं कोई, पुनर्जन्म तो होता नहीं है, आपके सिद्धियां नहीं होती हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं होता. लेकिन भैया आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले तो 50,000 लोग और भी तो हैं दुनिया में. आप वहां तो मानना है कि लोग वहां पे लोगों के डुप्लीकेट स्टैंडर्ड्स होते.
ये जो आपका क्रिकेटर जो है आपका कौन है, जो इंडियन टीम का कैप्टन कौन है, उसका नाम क्या है? विराट कोहली ने वो एक किताब अभी ट्वीट किया था मेरे ख्याल से लास्ट ईयर व्हाटएवर, कि वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक को उसने हाथ में लिखा और बोला कि दिस बुक हैज इंस्पायर्ड मी। तो सारे बैठ के हिंदुस्तानी बैठ के उसको रीट्वीट मार रहे हैं, क्योंकि उनको विराट कोहली में है वो लोग, उनको ये नहीं पता उस किताब में लिखा क्या है। जी मेरे पास है सर, मैं पढ़ रहा हूँ वो किताब। किताब है पूरी वर्ल्ड, वो खासकर आपके यूरोप अमेरिका में बहुत चलती है, कि उसमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस डेथ के बाद क्या होता है। तो वही गुमनामी बाबा का ये था कि वो पहली बात नेताजी, मैं जहाँ नेताजी वर्ड यूज कर रहा हूँ उसका मतलब 40 से पहले जब नेताजी को धर्म में और इनमें चीजों में इंटरेस्ट था, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो 14-15 साल की उम्र में वो घर से संन्यास लेके भाग के हिमालय में चले गए थे और वहाँ कई लोगों से मिले, ये था करके। और तो मैं INA की बात कर रहा हूँ, जब INA पीरियड में जब वो वहाँ पे सिंगापुर में थे वो, तो वहाँ पे भी रात को शाम को वो रामकृष्ण मिशन में जाते थे और भगवा पहन करके वो साधना करते थे। इनफैक्ट कई लोगों ने, मैं ये वेरीफाई नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों ने क्लेम किया कि एक बार एक आदमी वहां गया, देखा तो वो क्रॉस लेग बैठे हुए थे और हवा में लेविटेट कर रहे थे। इस तरह के दावे किए हैं बीच बीच में, मतलब डायरेक्टली। मुझे और याद है कि जब जर्मनी में गए थे, जब उसे मतलब साउथ ईस्ट एशिया में आने से पहले जब वो जर्मनी में थे, वहां पे भी उन्होंने लोगों एक जर्मन कोई बड़ा आदमी था, वो बाद में हिंदुस्तान में आया 1970s में, उसने बोला कि मैं उनसे मिला था उस होटल में, जब मिलने गया तो वो क्रॉस लेग होके बैठे हुए थे। तो उनके बारे में जो उनसे लोग मिले हैं, इवन जो फॉरेनर्स उनसे मिले हैं, वेस्टर्नर्स मिले हैं, वो सारे ही बात बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वाज वेरी मच स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। उनको धर्म का बहुत इंटरेस्ट था, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे। नेताजी हाथ में गीता लेके चलते थे हमेशा जी। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब वो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें डेथ हुई है, तो जिस तरह का वो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है प्लेन क्रैश होने का, कि ऐसे प्लेन में आग लगी थी, वो बाहर निकल गए थे, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, तो कम से कम 5-7 चीजें जो है वो सर्वाइव करनी चाहिए थी जी। तो उनके कपड़े शायद जले हुए हों, चश्मा नहीं जला था, उनकी गीता की कॉपी थी, उनके पास में कैमरा था, उनके जो यहाँ मेडल जो लगे थे लोहे के, पहली बार सारा कपड़ा नहीं जला, अगर जल भी गया तो कम से कम बचेगा। तो ये ऑब्जेक्ट्स मिलने चाहिए थे, कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक घड़ी मिली जो बाद में मालूम चला घड़ी उनकी नहीं थी, वो किसी ने झूठी घड़ी चेप दी उठा करके। जी तो पूरी बॉडी बदल दी थी सर, कोई सिपाही की डाल दी थी, तो ये सारी चीजें क्या बड़ी बात है। वो तो हम प्लेन क्रैश में जाएंगे तो अलग कहानी कि कैसे उन्होंने स्टोरी प्लान की थी, लेकिन ये कि ये इन्होंने वहां पे किया। और उसके बाद में कि नेताजी वाज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट इट, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। और ये जो तंत्र मंत्र का जो पूरा ये बंगाल में बहुत मशहूर है, मतलब वहां पे लोग बंगाल का जादू मतलब ये तंत्र में इफेक्टिव है, वो यहाँ पे भी है, वो हर जगह, लेकिन वहां थोड़ा ज्यादा वो जरा शक्ति की साधना होती है, तो ये तो कॉमन बात है, यहाँ भी होती है, तो यहाँ यूपी वगैरह में होती है। दैट इज वाई जब वो लखनऊ में आए, और तो जो मेरी समझ में कि जब वो यहाँ पर आए थे, तो उनका वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्टेक्ट जो उनका हुआ था वो हुआ था, उस जमाने के मुख्यमंत्री थे आपके संपूर्णानंद जी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी पुराने कांग्रेसी थे, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई ही वाज द चीफ मिनिस्टर। पंडित जी से उनके से हल्के से बिगड़े हुए थे, और संपूर्णानंद जी की सुभाष बोस से बहुत पुरानी दोस्ती थी। और संपूर्णानंद जी के मैंने पेपर जाके चेक किए, उनके नेशनल आर्काइव में दिल्ली में पढ़े हुए हैं, तो वहां जाके देखा सारे दुनिया जहान भर के वो तांत्रिक साधना फलाना ढमकाना के उन्होंने अकॉल्ट के उनके लेटर्स, उनके करस्पॉन्डेंस विद अमेरिकन्स एंड जूइश पीपल ऑन दिस इशू। तो ही वाज समबडी हु वाज वेरी कीन अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग्स एक्चुअली जी। तो काशी में जो संस्कृत यूनिवर्सिटी उन्हीं के नाम से, तो संस्कृत के बड़े विद्वान थे वो। तो ये जो हमें जो सुनने मिला गुमनामी बाबा के बारे में कि उनका कांटेक्ट उनके साथ में था, उन्होंने उनको किया, और वहां से वो अपनी स्पिरिचुअल साधना वादना वो करते थे। स्टार्ट उन्होंने शायद पहले कर दी थी, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल में पहुंच गए थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि वो आप सिद्धि लेंगे तो आप में ताकत आ जाएगी, तो जैसे कि वो सूक्ष्म शरीर में जाने की ताकत, कि आप शरीर से बाहर निकल के जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। अब आप मुझे बोलो, पढ़ा है सर, मैंने साबित नहीं कर सकता ना, मैं भूत को साबित कर सकता हूँ, नहीं ये दोगलेबाजी पब्लिक ना करे सर, ये चीज साबित करने की नहीं, एक्सपीरियंस करने की है। हाँ मैं बताऊँ, तो पब्लिक ये हमें सब में से पता है। पब्लिक की जो प्रॉब्लम ये आ रही है, पब्लिक की नहीं, खासकर पढ़ी लिखी जमात है, उसकी प्रॉब्लम ये, जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं बोलूं कि गुमनामी बाबा ने बोला कि अब्राहम लिंकन का भूत आता है, और मैं भी भूतों को जाता हूँ, मैं भूत से बात कर सकता हूँ, यहाँ पे कितनी योनियां होती हैं, कितने वो नर, वो पिशाच क्या होता है, भूत क्या होता है, ये सब अलग अलग चीजें होती हैं, किन्नर क्या होते हैं,
अगर ये बातें वो मैं बताऊं तो बोलेगा पागल था वो आदमी, वो दैट इज व्हाट दिल से, बिकॉज हम लोग साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं कर सकते कि नहीं तो, सर, वो आपका पूरा काम ही डिस्क्रेडिट कर देंगे अगर बुक में डाले होते तो। हाँ वही है। तो लेकिन अगर मैं वही चीज मैं एग्जांपल आपको दूं कि भैया स्टीव जॉब्स नाम का सुना कभी नाम, वो आता था क्रॉली बाबा के पास, किसने नहीं सुना जी। गाने में आ जाएगा बेटा स्टीव जॉब क्यों आया था मेरे यहाँ पे बाबा के पास में, जी दूसरे वो जी क्रॉली बाबा के पास में। तो जब मैं आपको खासकर जो वेस्टर्न नाम दूंगा फॉरेनर्स के, खासकर ये जो यूरोप अमेरिका के लोग है, वो सब मेंटल है ना, गया नहीं हमारा भी, मेंटालिटी हमारा गया नहीं। वो तो गुलाम है यार, इतने साल से गुलाम बुरा करे तो ठीक। तो जब गोरों का नाम आएगा, और खासकर की वहां के एग्जांपल दूंगा, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, आपने उसका नाम सुना बॉब वुडवर्ड का, कार्ल वाइनस्टाइन बॉब वुडवर्ड ने वो जो आपको वाटरगेट स्कैंडल किया था अमेरिका में। हाँ वो उसको अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले देखा था। हाँ, बॉब वुडवर्ड वो वॉशिंगटन पोस्ट का पत्रकार था। यस, अरे वो उसका एडिटर था वो, तो अभी वो बड़ा तगड़ा आदमी है, अभी भी वो एक्टिव है। वो फिल्म बनी है ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, देखना बड़ी अच्छी फिल्म है, उसको ऑस्कर अवार्ड मिले थे। कौन सा नाम बताया? ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, रॉबर्ट रेडफोर्ड प्लेड द रोल ऑफ बॉब वुडवर्ड एक्चुअली इन दैट मूवी। तो उस फिल्म में आप में उसमें जो उन्होंने दिखाया उसके अंदर उन्हें उसमें क्या नाम है कि Bob Woodward is one of the topmost names in journalism all over the world. He is the biggest name because as I say, Watergate scandal is the biggest thing to happen in the political arena in terms of scandals. जी. तो Bob Woodward ने अपनी किताब लिखी थी 2-3 साल, कुछ एक साल पहले। उसमें उसने मेंशन किया कि जब आपके क्लिंटन साहब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो हिलरी क्लिंटन और ये सब बैठ करके ये वो लोग सेशन करते थे जिसमें स्पिरिट्स आती थी। अच्छा, ठीक है। तो जब बॉब वुडवर्ड लिखेगा तो बोलोगे अच्छा बात, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि वुडवर्ड साहब कह रहे हैं वही बात। अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे हम पागल हैं। जी सही है, हमारी चमड़ी सफेद नहीं है, हम लोग दिल्ली बैठे हुए। अगर मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क में और वहां जाकर चमड़ी सफेद हमारे यहाँ तो बात करने बैठे तो उनको सिखा सकते हैं, इतना सारा लिटरेचर है। तो वो प्रॉब्लम है ना। अब देखिए एक चीज आपको बताऊं मैं अनुज, आपको इसमें इशू क्या है कि एक किताब जो चलती है ना, किताब के बिकने में इट इज बेसिकली मार्केटिंग। कंटेंट कोई पढ़ता है नहीं, ज्यादातर लोग किताब उठाते हैं 40 पन्ने का छोड़ देते हैं, पीछे देखते हैं सर फोटो में क्या लिखा है, बड़ा आदमी का नाम होना चाहिए, पढ़ना पढ़ने से मतलब नहीं, वो शेल्फ में लगाने के लिए होती है कि ये दिखाना कि मैंने लीवाइस की जीन्स पहनी है तो मैंने ये इंपॉर्टेंट किताब ली हुई है। पढ़ना कभी नहीं। जैसे मुझे याद है कि मेरा कोई जानने वाला था बच्चा, तो उसने मुझे बोला कि मैंने वो कौन सी वो हैरी पॉटर का किताब मैंने पढ़ना है। उसको मैंने बोला तेरे को अंग्रेजी की 2 लाइन तो तुझे बोलनी आती नहीं है, ना तेरे को समझ में आती, तो हैरी पॉटर कैसे पढ़ेगा बता मेरे को। हैरी पॉटर इज अ बुक व्हिच इज मेंट फॉर अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन अ वेस्टर्न सोसाइटी। इट्स नॉट मेंट फॉर एन इंडियन चाइल्ड। यू कैन वॉच द फिल्म इज फाइन, रिलेट ही नहीं कर पाएंगे सर। अरे समझ ही नहीं आएगा ना वो। अब मैं किसी को पंचतंत्र समझाऊं बैठ के यूरोप में, क्या पल्ले पड़ेगा। यू हैव टू रिलेट टू दैट थिंग। आपको रिलेट करना आना चाहिए ना। मेरे यहाँ कोई पंचतंत्र विक्रम बेताल को मुझे पढ़ाएगा तो मुझे समझ कि मेरे कल्चरल ईथोस में आता है विक्रम बेताल क्या चीज है, विक्रम क्या था, महाराज तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो हैरी पॉटर का किताब है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो वेस्टर्न कंट्रीज में पैदा हुए हैं, चाहे इंडियन ही क्यों ना, लेकिन दे शुड बी बोर्न बॉट अप देयर। ये हमारे लिए नहीं है जो बैठ के यहाँ पे आकर के पागलों की तरह पढ़ रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, फेक कर रहे हैं। वो फेक दिखाने के लिए है, शोशेबाजी। ऐसे स्टैंडर्ड बनता है ना सब काम के अपने सर्कल में। बहुत सी किताबें हैं जो सिर्फ शोशेबाजी के नाम पे चलती है। एक मुझे किताब का नाम वो है कि एक किताब आई थी गांधी जी के बारे में। उसमें किताब में उसने गांधी जी के जो विमेन उनके साथ में एड थी उनके बारे में उसने डिटेल में कमेंट्री दी, पूरे उसने फुटनोट बना के समझाया। उसमें से एक केस आया था कि गांधी जी का एक बीच में अफेयर हुआ था विद रविन्द्रनाथ टैगोर की नीस के साथ में। तो पूरा उसने चैप्टर दिया उसके बारे में किताब में। किताब अच्छी है, अवेलेबल मिल जाएगी अमेज़न में आपको, लेकिन वो मशहूर नहीं है। लेकिन एक किताब बाद में राजमोहन गांधी ने लिखी, जो गांधी जी के पोते हैं और अमेरिका में पढ़ाते हैं, टीचर प्रोफेसर है वहां पे, मशहूर आदमी है। उसने किताब लिखी, उस किताब के अंदर उसने 2 लाइन में वो बात लिखी कि हाँ वो अफेयर था। वो उसके ऊपर वो कवर स्टोरी बन गई किसी मैगजीन में, बवाल मच गया पूरे देश में। डिटेल नहीं है उसके अंदर कुछ। अगर आपको डिटेल लेना तो आपको 3rd किताब पढ़नी पड़ेगी, जो किताब पब्लिक उसमें लाइमलाइट में नहीं है। पब्लिक को उसके मतलब इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है, कंटेंट से मतलब नहीं है। शायद यूट्यूब में हो, आजकल यूट्यूब में हो, लेकिन जब वो किताब मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आदमी का नाम देखते हैं, कौन है, कितना मशहूर है। मैं कलकत्ता वगैरह में गया तो वहां मैंने देखा हर लाइब्रेरी के किताब, हर जगह वहां पे वो आई एम मलाला जो किताब है ना, मलाला को लड़की को नोबेल प्राइज मिला, हर एयरपोर्ट पे बैठी है मलाला तो सर। हाँ भैया, मेरे को तो आप पैसे दोगे मैं तब भी नहीं पढ़ूंगा, वो लड़की बड़ी नहीं मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन उसकी शक्ल दिख जाती है एयरपोर्ट पे भी। मुझे आप फ्री में भी दोगे मैं तब भी नहीं पढ़ूंगा उसको, क्योंकि मैं इतना बड़ा भक्त हूं, इतनी मोटी किताब पढ़ूंगा। और वो किताब भी किसी और ने लिखी है उसके नाम से।
I admire that person, of course. I admire that girl. She's very courageous. लेकिन That's सर fine. एक इंटरप्ट करूं, एक बात इंटरप्ट करूं, जैसे आपके लेक्चर से मेरी एक बात समझ में आई, नेताजी के बारे में कम सीखा, मैं ज्यादा क्या सीखा, जिस तरह इंडिपेंडेंट इंडिया ने गांधी ब्रांड यूज किया है ना, वैसे न्यू मॉडर्न वर्ल्ड में मलाला इज ऑल्सो अ ब्रांड, आई सी हर एज अ ब्रांड सर। वो जैसे गांधी जी का ब्रांडिंग तो हर चीज की, आप ब्रांडिंग नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, लेकिन सर मकसद भी तो होता है ना, किस मकसद से कर रहे हैं। आज गांधी जी का ब्रांडिंग होके देखो सर क्या फायदा हुआ हमारा। उसका तो मुझे इतना, मैंने वो स्टडी नहीं किया, लेकिन उसकी उसकी मतलब हर एक के पीछे, जैसे अभी शशि थरूर वगैरह में नहीं, नॉट समबडी वाज राइटिंग द अदर डे सॉ एन आर्टिकल कि नोबेल प्राइज का जो है ना वो चला गया, इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, क्योंकि हमको नहीं मिला हिंदुस्तानियों का ना, अब तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। आप लोग ट्राई कर रहे थे, पंडित जी का नाम 11 बार गया, आपको ठेंगा मिल गया, वहां पे आप कह रहे थे नोबेल प्राइज की इंपॉर्टेंस नहीं है। होता अब ये जो मलाला को जो मिला था तो उन्होंने इक्वल करने के लिए इंडियन को भी दिया, सत्य, दैट्स आई हर्ड समवेयर, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान को देंगे हमारे हाथ बंद हो जाएगा, तो इक्वलाइजर करने के लिए, कि यूरोप में एक फीलिंग है ना, वो साउथ एशिया में हम दोनों को डाल देते। खैर वो अलग कहानी है, वो आदमी भी खो गया सर, वो न्यूज में भी नहीं दिखता, कुछ नहीं, अभी उनके बारे में कहाँ कुछ आता है, कुछ मालूम नहीं वो क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है। बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, ये कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मीडिया में लाने के लायक नहीं। मीडिया में इंटरेस्ट लोगों को होता है मसाले में, वही तो बता रहा हूँ सर, उसमें भी बहुत कुछ कंट्रोवर्सी गाली देती है पॉलिटिशियंस को, मीडिया को, बट पब्लिक को इसी को पसंद करती है। उन्हीं पे तो चलता है, अगर लोग मसाला खाना बंद कर देंगे तो दुकान में थोड़ी बिकेगा मसाला, ऐसी बात है ना सर, वो तो सीधी बात है। तो उसके लिए गाली मत दो पॉलिटिशियन को, पॉलिटिशियन इज नॉट टू बी ब्लेम फॉर इट। नहीं, दे आर द, मैंने कहीं पढ़ा था, दे आर द मिरर ऑफ द सोसाइटी, योर एक्टर्स एंड योर पॉलिटिशियंस। मीडियाज में आज लोग बैठ के जो बातें कर रहे हैं टीवी पे, कि वो टीवी चैनल में वो शाउट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपने क्या ये बीबीसी से समझ रखा है इसको? क्या वो बीबीसी चैनल है क्या? बीबीसी इज मेंट फॉर ऑडियंस इन इंग्लैंड, इट्स नॉट मेंट फॉर ऑडियंस इन इंडिया। पहले आप you used to mimic the BBC style, that style is gone, because now English is understood across the country. People can understand English to the extent even in villages now. So that media is responding to the new realities. And if you see television is chaotic, India is chaotic. That's all. लोगों के दिमाग में शोर है, कहीं तो निकलेगा बाहर। हाँ बिल्कुल, लेकिन दबाया जा रहा है सर। एक मुझे पूछना था। हाँ बिल्कुल पूछो। हाँ, एक जैसे हम रशिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेक्चर में मैंने सीखा था ये बात, हम रशिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा कुछ डिक्लासिफाई करे, लेकिन हम अपने घर से तो अपनी जेब से तो कुछ निकाल के दे नहीं पा रहे, तो उस पे प्रेशर कैसे बनाया जाए? मतलब वो मैंने आपके जितने भी लेक्चर देखे ना, वो आपने आंसर दे दिया, वो प्रेशर तो गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा ना। हम जब अपना ही गवर्नमेंट पे बनाना पड़ेगा ना। वो तो मैं वडोदरा में जब गया था लेक्चर देने, तो वहां तो मोदी जी के पर्सनल फ्रेंड बैठे थे, मैं तो वहां उनको सुना के आया हूँ, और वो डिसएग्री नहीं किया मुझसे। मोदी जी तो सर, मेरा अहमदाबाद से, मैं मोदी जी के बारे में एक बात बताऊं सर, मैं अहमदाबाद में नौरंगपुरा एरिया में रहता हूँ, हमारे नीचे में एक सीए रहते हैं। जब मोदी जी कार्य करता थे, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, हर बजट के बाद, नेशनल बजट और गुजरात के बजट के बाद, हमारे घर के नीचे आते थे, वो सर कंधे पे थैला लगा के बैठते थे, पूरा बजट समझते थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, अच्छा बुरा क्या है, पूरा। और मेरे पिताजी भी जाते थे नीचे, गप्पे लड़ाते थे, खिचड़ी खाते थे। वो जब कार्य करता थे ना, तब से हम उनको पहचानते, इतने मतलब नजदीक से पहचानते हैं। मेमोरी बहुत शार्प है, पहचानते हैं। उनकी चमड़ी बहुत जाड़ी है सर। मैं तो मोदी सपोर्टर हूँ, फिर भी बोलता हूँ, मोटी चमड़ी क्या है वो, जब तक नहीं सपोर्टर हम भी उनके खिलाफ नहीं है। मैं सिर्फ उनसे, कई लोग मुझे तो, मैं तो दोस्तों से गाली खाता हूँ, मैं सपोर्टर हूँ उनका, लेकिन नेताजी वाले केस में उनसे भी खुश नहीं हूँ, कि हमने जो उनसे सवाल ही नहीं है ना सर, वो तो मैं आपके साथ हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, कि अगर प्रेशर बनाना है ना, राहुल गांधी को पीएम नहीं बनवाना यहाँ पे, जो मैंने नहीं जी, वो तो बात ही नहीं है, लेकिन मोदी जी पे प्रेशर बनवाना है तो हम सबको आवाज तो लाइफ की तरह चिल्लाना पड़ेगा सर। हाँ, तो उसके लिए यही कि पब्लिक में अवेयरनेस हो रही है, जितना हम लोग इशू को जिंदा रखें। हमारी किस्मत ये खराब हो गई कि हम लोग एक ब्रेक थ्रू, ऑलमोस्ट हमने कुछ पहुंचना शुरू हो गए थे हम लोग 6-7 महीने पहले, एकदम से कोविड आ गया, तो एकदम से ब्रेक लग गया सारी चीजों में, सारे एक्शन रुक गया, सारा काम बंद हो गया। अब हमको इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 5-6 महीने। मुझे लगता है कि 5-6 महीने से पहले लाइफ तो नॉर्मल नहीं होने वाली।
नहीं, It will be इधर at से least मुझे तो 5 or मालूम 6. नहीं सर, इधर स्वीडन में तो लॉकडाउन लगा ही नहीं है, तो सब ऐसे ही चल रहा है आप जैसे कहाँ पहले स्वीडन यार, था। छोटा सा कंट्री है उसका, और हमारे हिंदुस्तान से कम हुआ वो तो। नहीं और भाई, यहाँ मतलब मैं नहीं जानता भाई, तो यहाँ पे पूरा लेकिन पॉपुलेशन हमारा सबसे ज्यादा तो हमारा मेरे इम्यूनिटी सिटी काफी अहमदाबाद में अच्छा है। है, हमारा इम्यूनिटी काफी अच्छा है, हमारे काफी कंटेन है। अब चाहे वो हमारी इम्यूनिटी के कारण हो मुझे पता नहीं, लेकिन वो काफी कुछ। हमारा कुछ लोग बोल रहे थे सर कुछ कि हमारा क्लाइमेट भी हेल्प कर रहा है। हमारा क्लाइमेट हेल्प कर रहा है, हमारे को शायद बचपन में वो पोलियो का जो इंजेक्शन लगे उससे फर्क पड़ा। हाँ हाँ, उसके और बारे में भी बेसिकली मैंने डीएनए, सुना वो था। डीएनए की स्टडी की हमारी हमारी इम्यूनिटी ज्यादा है यार। हम लोग तो फिर देखो, हमारे आधे कंट्री में मेरा मुंह खुलाना, फिर लोग हाथ धोने की हमारे कस्टम नहीं। सही है। गंदे पानी के बाद में लोग हाथ नहीं धोते, तो उसमें वो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। आप जब पहले लोग आते थे, अभी भी है कि जो ये बिस्लरी का पानी क्यों मशहूर हुआ था, कि जब साहब लोग बाहर से आते थे यूरोप अमेरिका से, तो दिल्ली का पानी पियेंगे तो पेट में दर्द ज्यादा। दर्द तो थोड़ा बिस्लरी सही है। स्टार्ट की उन्होंने। अब जितने हमारे यहाँ जितने हिंदुस्तानी अंग्रेज हैं वो भी बिस्लरी पीते हैं। जी तो बिल्कुल। हमारा तो कोई टैप का वाटर पी ले यहाँ दिल्ली का, उसका तो पेट फट जाएगा उसको तो बेचारे का। सही है, सही है। आप तो आप टैप का वाटर पी लेते हो ना, वहाँ तो साफ होके आता है। हाँ, मेरा वही दिल्ली का का टैप पीते का हैं वाटर सर, पी के बिस्लरी देखना, तो। उसके बाद में ना आपको पता चले आपको क्या निकला पेट में 6 साल बाद। बिस्लरी तो ये चीज। तो पेट्रोल से महंगा है सर इधर। जो तो नल खोला पानी ची भी है। ओके, चलिए ठीक है, गुड टॉकिंग टू यू। अब एक अनिर्बन आ थैंक यू गया तो सर। मैंने अनिर्बन से करो। जी थैंक यू जी, वेरी मच फॉर कमिंग अनुज, यू वर द फर्स्ट थैंक यू गेस्ट सर, एंड होप टू कैच यू यू सम टाइम आर अगेन। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। या यप Thank- यप। हाय अनिर्बन, वेयर यू फ्रॉम? Hi Dada, so I'm from Kolkata and really अरे I वाह, can't पहले पहले recognize myself. पहला 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 गेस्ट गुजराती भाई, दूसरा मेरा अपना बंगाली भाई मेरा। I mean, actually the reason वेयर I वेयर wasn't वेयर इन कलकत्ता, कहाँ से, कलकत्ता में, कलकत्ता से कहाँ actually I'm से? from Belghodia. It's बेल near to Damdam. दमदम के Belghodia. पास? Yes. अच्छा, बेलगुड़िया में कभी नहीं हूँ मैं, दमदम तो बहुत दूर गया हूँ। हाँ, I mean just एक दो स्टेशन पीछे. Just it's very नहीं, दमदम मेट्रो, हम्म। दमदम का जो स्टेशन खत्म होता है वहां पे, या उससे आगे है कि पहले है? उससे मैं I टॉलीगंज mean से बहुत अभी तो मैं नहीं जाता, लेकिन जब पहले शुरू हुआ था मैंने, यूजुअली आई यूज्ड टू ट्रैवल इन दी कलकत्ता मेट्रो ओनली। तो वो टॉलीगंज से लास्ट एंड था उस टाइम मैंने, टॉलीगंज से दमदम वाज द अदर एंड, तो मैंने वो भी किया था। तो नहीं, ये इसका मेट्रो आपका के साथ तो फिलहाल तो लिंक है नहीं. नहीं एक्चुअली है, लोकल इससे आगे है ट्रेन क्या? एंड बसेस. यस यस. हाँ, बस होने वाला है. एक्चुअली डनलप नाम का एक जगह है, उसके वहां तक मेट्रो का लिंक खींचने वाला है. तो अच्छा, ये इन द नियर फ्यूचर इट विल बी कनेक्टेड. बट ओके, या. And actually, I mean, what I was saying is the reason why I was thinking twice about turning on my webcam. I can't recognize myself. I mean, अरे भैया यार, ये I आपको तो बेसिकली I'm not the kind of a person who yeah. बीच में मैंने एक दो सेशन किए थे ना, आई गूफ्ड अप बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता कैसे करें। और शायद मैं मोबाइल फोन से जो होस्ट कर रहा, मोबाइल फोन से मुझे शक्ल भी मुझे पता नहीं होता कैसे करूं। तो अब प्रॉब्लम ये डेस्कटॉप पे आ रही है कि डेस्कटॉप पे एको की प्रॉब्लम आ रही थी करके, तो कुछ उसका मैंने 2 दिन में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है कि एको ना आए, क्योंकि इसमें हमारी फोटो होनी चाहिए। मतलब जैसे कुछ लोग ने ज्वाइन करने की कोशिश की, उनकी फोटो नहीं थी, उनको नहीं लिया उनको। आपकी फोटो होनी चाहिए, फोटो अगर खराब भी हो तो चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आपकी ठीक आ रही है, आपकी इतनी बुरी नहीं है। फोटो अगर खराब भी हो चल जाएगा, लेकिन साउंड आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। अगर साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, साउंड अगर आप वो कर रहा है या वो क्लियर नहीं आ रही है, देन इट इज नो पॉइंट, बिकॉज ज्यादातर लोग तो ये सुनने के लिए देखते हैं ना इसको। इमेज होनी चाहिए लेकिन बेसिकली साउंड क्लियर होनी चाहिए। तो मैं बेसिकली मेरा फोकस साउंड पे था। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने किया तो इतना ज्यादा एक और था कि मेरा दिमाग घूम गया खुद का। और फिर फोन पे ही बिल्कुल नहीं हो रहा। फोन पे कोशिश की, और फोन में यार वो हेडफोन लगा के मेरा सिर में आवाज गूंजनी शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं, वो नहीं होगा, ये डेस्कटॉप पे कोशिश करूंगा। तो मैं उसलिए आज मैंने कहा टेस्ट किया, 3-4 बार मैंने ड्राई रन करूंगा इस तरह के। मैं आई विल डू दीज ड्राई रन्स कि मैं रैंडमली लोगों से बातचीत करूंगा, आई विल टॉक टू देम। हम लोग वर्चुअली आपस में मीट कर रहे हैं। आई कुड हैव मेट यू इन कलकत्ता बट आई एम मीटिंग राइट नाउ हियर वर्चुअली। और उसके बाद में फिर हम लोग अड्डा बना के रात को 5-7 लोग अड्डा बना के उसको लाइव स्ट्रीम करेंगे। And we will take actually people. we've met up a few times already. I mean, after your talks ended in both in Delhi and in Calcutta. But I did not have this beard, so यार तुम beard कर लोगे तो फिर कैसे पता चलेगा? तो आपका नाम अनिर्बन। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि ये एक तो आप लोग मेरे जो दोस्त हैं, अनिर्बन नाम के मेरे कम से कम 8-10 दोस्त हैं। Okay. तो नाम भी I am Anirban Biswas. Okay. Okay. Okay, yeah, I remember. Yeah. Okay, now you know you. Yes. You were to help me. तो अनिर्बन आपकी शक्ल नहीं देखी थी ना, मैंने शक्ल अब देख रहा हूँ।
नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा है मुझे, पर शायद याद ना हो। एंड लाइक आई सेड, मैंने नहीं देखा, शायद वो नहीं पहचान नहीं पाया उसमें करके। ओके, वो आई एम हैप्पी। Okay, so we. Well, I'm happy to say that the echo is absolutely not is my sound quality okay? This is going live, so I'll test it. Of course, I will go back. It's perfect. Perfect, huh? क्योंकि ये मैंने इसको yes, it's perfect and the echo is not there. मैं ये कर सकता हूँ कि जब मुझे कमेंट मारना होगा तो मैं पास आ जाऊंगा कैमरे के, अदरवाइज आई कैन सिट लाइक दिस, बट यहाँ से बोलूंगा तो मेरे ख्याल से साउंड क्लियर नहीं आएगा। Yes. अभी आ रहा है ठीक कि नहीं आ रहा? No, actually, yes, the sound volume decreases a little bit, but still it is audible. But like you said, you can come closer to the mic whenever you talk. Speak so loudly at night, so that is also a problem for others actually. Yes. तो ये चीज है। चलो बताओ क्या नेताजी वाली बात करो, क्या सवाल है बताओ, ताकि लोग नहीं तो सुन के उनका दिमाग चढ़ जाएगा हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली मतलब मैं जो सिनेरियो देख रहा हूँ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स और rather a lack of it, I mean, I really wonder what can be done to put pressure on the government to make some kind of हम लोग it's disheartening right now. हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और नेता चलाते हैं गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस जो हैं वो चलते हैं वोट बैंक के ऊपर, ठीक है। जो चीज पब्लिक को जिसमें इंटरेस्ट होगा पब्लिक उसके नाम पे वोट देगी। तो जिस दिन गवर्नमेंट को ये मालूम चल गया, जैसे मान लीजिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मैसेज जाता है कि अगर नेताजी को लेकर के हम लोग ये काम करेंगे तो हमको इतनी सीटें मिल जाएंगी बंगाल के अंदर, फिर लोग बड़े खुश होंगे इस बात से, मेरे घर में आके फाइल लेके जाएंगे, बता रहा हूँ आपको, वोट पावर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें हम ये कहते हैं कि हम लोग इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं अपने एंड पे। और एक बहुत अच्छी चीज ये जिसका एग्जांपल यही है जो हम आप और मैं कर रहे हैं। आज बहुत टाइम तक सारा जो मीडिया था वो मेन स्ट्रीम मीडिया था, आपका प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया, वहां पे बहुत से बैरियर थे। मैं ये नहीं कह रहा, उसमें से कई बार बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया, लेकिन सोशल मीडिया में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इसने सोशल मीडिया ने, और खासकर ये कोविड होने के बाद में ये आपका लाइव स्ट्रीमिंग का इशू है और ये जो स्ट्रीम यार्ड जैसी चीज बन गई जिसमें मैं और आप बातचीत कर सकते हैं, नॉट ओनली यू एंड कैन टॉक, आई कैन ऐड मेनी मोर पीपल, आई कैन टेक वन बाय वन, इसको मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। तो ये जो फैसिलिटीज हमको अवेलेबल हो गई हैं, और जिस तरह से ज्यादातर लोग अब यूट्यूब पे जा रहे हैं, रादर देन दे डोंट वॉच टीवी, दे वॉच यूट्यूब मोर देन टीवी। तो अब ये कि अब हम लोग जैसे लोग पब्लिक तक पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग जिनकी कोई मीडिया में कभी जिंदगी में एक बाइट नहीं आई। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को मैंने कभी टेलीविजन में नहीं देखा चैनल्स में, लेकिन जब वो अपने यूट्यूब चैनल पे बोलते हैं तो लाखों लोगों को देखने के लिए आते हैं। तो ठीक है, अब आप अपना तो हमें ये कि आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया से डिपेंडेंसी खत्म होगी, ना उसके रिपोर्टर के पास जाना पड़ेगा, जो करना है मैं अपने चैनल, जहां मुझे पता है कि मेरी अगर फेसबुक में मैं कुछ लाइव कर रहा हूँ या मैं उसको यूट्यूब में लाइव कर रहा हूँ और मुझे कुछ लाख लोग देख रहे हैं, आई डोंट गिव अ डैम वेदर समबडी एबीपी मेरे बारे में क्या छापता है, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे ऑडियंस है। तो हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि हम लोग अपने पब्लिक तक बात पहुंचा सकते हैं अपने फ्री टाइम में और पब्लिक को अवेयरनेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो कोविड को लेकर के हम लोग तो अभी क्या नाम है लेक्चर सीरीज से पॉसिबल नहीं है। लास्ट ईयर दिस टाइम अराउंड आई वाज इन अमेरिका, आई वाज ट्रैवलिंग सो मच, आई वाज इन यूएस एंड सो फोर्थ, बट अभी तो हम लोग अभी की जब तक ये माहौल ठीक नहीं होता तो यही मोडालिटी जो है ना कि हम लोग ऑनलाइन आके बार बार करें और अड्डा मारे रात को। हम 5-7 दोस्त जो है पहले हम अड्डा मार के रात को डिस्कशन करें और पब्लिक हमको सुने और हम लोग उसमें इशू पिकअप करेंगे। मैं चाहता हूँ, जैसे मेरा इंटेंशन ये है कि कुछ चीजें जिनको मेरे को लिखने का टाइम मेरे पास नहीं है, जैसे अजीब अजीब थ्योरियां नेताजी की फैमिली को लोग प्रमोट कर रहे हैं, गलत गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। कुछ उनके फैमिली के जानने वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि साहब वो कि मुखर्जी कमीशन में प्रॉब्लम्स हैं। बेटा सारी प्रॉब्लम मैं को समझा दूंगा तुम्हारे को, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको नेट पे आके आपको एक एक सैंपल दिखा के बताऊंगा कि आप बकवास साफ कर रहे हैं और सब डाटा बिल्कुल क्लियर हमारे पास में। तो क्योंकि अब हमारे उसमें टाइम है, हमारे पास में टाइम है और हमारे पास में ये मोडालिटी अवेलेबल है कि आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो एक बार जरा ये हम लोग जरा ये कर करके अपना हाथ साफ कर लें इस पूरे इस पे, बाद में फिर मैं इस पे प्रेजेंटेशन करेंगे,
चंद्रचूड़ मैं होस्ट करेंगे, हम लोगों से क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, डिटेल में उनसे बातचीत करेंगे, एंड वील टेक वो, जैसे प्रणब बाबू ने कहा था ना पार्लियामेंट में कि बड़ी स्ट्रक्चर डिबेट होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर डिस्कशन इसमें हम लोग करेंगे। ये डिस्टर्बेंस साउंड की कहाँ से आ रही है बीच में? आपके एंड से आ रही है? किसका साउंड बीच में डिस्टर्बेंस का? Someone coughing. हाँ, Disturbance? No, not on my side. no, But not coughing. someone did cough in the next room. So Somebody scratching something, so there's some kind of scratching noise was coming. Could be No, because I of think it must be some static. network Yeah, problem. some static. Yeah. So It could we be are network talking problem. about, I think so this is one of the answer is that you and me are talking to each other, and so we will try and carry message to people in a different way. So we need to move towards video now. People are not reading Facebook posts, they are not Yes, interested in Facebook posts, they don't, very few people read, so we will do live streaming more. So that is one way we'll keep the issue alive, and once the COVID thing is gone, we will revert to our old session. See, nothing compares the real life sessions. आप लोगों के सामने खड़े होकर जो बातचीत करते हैं उसका तो आपको पता, आप तो दोनों अटेंड किया, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अभी तो हम वो नहीं कर पाएंगे ना, उसका अपील ही स्पेशल है। हाँ, और वो मेरा जो एम था, मैंने एक्चुअली मैंने उसका एक वीडियो बना के था, मैं उसका लिंक नहीं पोस्ट कर पाऊंगा, एक वीडियो मैं जब अमेरिका में था तो मेरा अभिषेक, मेरा जो दोस्त है वहाँ पे, सारा वही मेरा पूरा, हाँ, और सारे वो कराता अभिषेक वगैरह, IIT आया है वो, तो अभिषेक ने वो उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया वहाँ पे हमने, तो मैंने नया गोप्रो वहाँ पे लिया था, गोप्रो 8, तो उसका मैं वीडियो बनाया था, तो वो उसमें उसको मैंने, उसी ने मुझसे पूछा कि क्या हम कर सकते हैं इस पूरे केस में, और वो बात में बाबा, उसमें कुणाल भी मेरे साथ उसके शो में मैं गया था, मैंने ये बात रिपीट की थी कि द नीड ऑफ द आवर इज कि जिस तरह से देखिए भारत में बहुत से बड़े बड़े नेशनल आइकन्स हैं एक के बाद एक, अब जैसे आपके अपने शिवाजी महाराज हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, अपने भगत सिंह है पंजाब, बाबा साहब अम्बेडकर है, अपने सरदार पटेल है, उनका एक एडवांटेज सबके पास में एक बड़ा जबरदस्त, उनके पीछे एक सॉलिड पावर हाउस है सिंगल, जैसे शिवाजी महाराज करते हो, मैं भी पसंद करता हूँ, हम दोनों शिवाजी महाराज को पसंद करते हैं, सभी पसंद करते हैं हिंदुस्तानी, लेकिन जो एक मराठी लोगों में जो उनके दिल में उनके लिए श्रद्धा है वो, और उसके नाम पे सारे स्पेशल प्लेस, वही बात सरदार पटेल के फॉलोअर सारे देश में है, लेकिन गुजरात के लोगों में बहुत स्पेशल अटैचमेंट है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे घर में, मेरे खानदान में मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा इलाके का कोई दिल्ली का आदमी अगर बड़ा काम करता है, जैसे हम लोग, आप कलकत्ता में हैं, आपके वहाँ वो शाहरुख खान की वो लेके लोग बातें करते हैं, लेकिन शाहरुख खान तो हमारी दिल्ली का है ना, आपके KKR वो टीम बनी है तो लोग कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर है बंगाल का, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन शाहरुख खान तो दिल्ली का है, तो हमें तो उसमें सुन के ज्यादा अच्छा लगता है कि हमारे दिल्ली शायद, तो लोगों को नॉर्मली एफिनिटी होती है ना अपने पास के लोगों से, बिल्कुल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे पॉजिटिव सेंस में अपने आसपास के लोगों को, अपने स्टेट के लोगों का नाम लेना में गलत बात नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं बंगाली हूं और मेरे बंगाल के लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज्यादा योगदान दिया, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं पॉजिटिव सेंस में अपनी कल्चरल और अपना रीजनल प्राइड की बात करता हूँ और अच्छी बात बोलता हूँ, बड़ी खुशी की बात है। गुजराती बोले कि भाई हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिटी है, हम लोगों ने इतना जबरदस्त काम किया, हम लोगों ने वो, तो उसमें दे आर वेरी मच जस्टिफाइड टू टेक द नेम ऑफ द कम्युनिटी इन दैट सेंस। तो वही है कि हम जब छोटे थे, तो आपको याद होगा, आप तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन मुझे पता है कि हम जब स्कूल में थे तो शिवाजी अपने बाबा साहब अम्बेडकर और अपने ये सरदार पटेल वर टेक्निकली नॉट इवन फुटनोट्स इन हिस्ट्री, उनके बारे में कुछ नहीं हमको पढ़ा जाता था, कोई उनका नाम ही कहीं नहीं था उनका, तो हिस्ट्री किताब पढ़ेंगे, छोटा मोटा नाम था कि एक अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान दिया था, कहानी खत्म। सरदार पटेल थे, ही वाज मैन ऑफ स्टील, आयरन मैन बोलते थे उनको, उन्होंने एक किया था बस, वो थोड़ा सा रेफरेंस और कोई वो प्रोग्राम होगा, कुछ नहीं। लेकिन हमारी आंखों के सामने देखिए बाबा साहब के फॉलोअर्स ने और अपने सरदार पटेल के फॉलोअर्स ने इतना जबरदस्त चक्का घुमाया है कि आज आप देखिए, आज उनकी सोसाइटी में स्टैंडिंग कितनी जबरदस्त है, आज उनकी सोसाइटी में स्टैंडिंग क्या जबरदस्त है। तो वो है कि आप सरदार पटेल की बात करेंगे तो पूरा गुजरात खड़ा हो जाएगा फेवर। आप बात करेंगे नेताजी का प्रॉब्लम, जो नेताजी का प्रॉब्लम ये हुआ, जो द रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू ऑल दीस नेम्स, उसका प्रॉब्लम ये है कि नेताजी के पीछे कोई स्टेट नहीं है,
उनके पीछे कोई एक ग्रुप नहीं है। कहने को लोग वो एक गाले बड़ा अच्छा ख्याल है अपने को भटकाने के लिए कि सब बंगाल खड़ा है। बंगाल सुभाष बोस के लिए कभी नहीं खड़ा हुआ। बंगाल सुभाष बोस स्ट्रीम यार्ड में बैठ के हम लोग को हम ये बकवास नहीं कर रहे होते। ये मैं 4 दिन में काम में पाया था। 40 MP है बंगाल के, 40 MP है और जानते हैं मुझे उसमें से बहुत सारे, मिल चुका हूं मैं कई लोगों से। ये तो बवाल मचाते थे पार्लियामेंट के। बंगाल के लोग तो मशहूर है, वो तो उनका खून बड़ा गर्म होता है। सुभाष बोस के बारे में ये अभी काटजू बैठ के जब बकवास करा है उसने पहले, आपको याद है ना काटजू ने जब गाली गलौज दिया था बंगाल में, क्या याद है ना, मैंने उसको गाली दी। तो वो है कि बंगाल को खड़ा होना पड़ेगा। तो और कुछ 15-20 वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकट्ठे हो जाए ना इस बात को लेकर के, एक टीम बना ले। आइडियली दे शुड बी फ्रॉम ऑल पार्टीज, और वो पार्लियामेंट में जाके बवाल मचाते हैं बस कि फाइल बाहर निकालो। यार 10 MP तो खड़ा करो, उसके बाद हम बताते हैं कैसे फाइलें बाहर निकलेंगी हमारे को। आई थिंक इन दिस रिगार्ड, मतलब जैसे जो भी जिसका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के लोगों को थोड़ा एक इनफॉर्मल ग्रुप बना के वहाँ के MP MLA से जाके एक मीटिंग करना चाहिए कि देखिए सर ऐसा बात है, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इस विषय में विधानसभा हो या लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहां पर आप इस विषय को उठाइए, इस विषय में कुछ बात। सारे MP MLA को मालूम है कि लोग वीडियो सोशल मीडिया में क्या देख रहे हैं, उनको वोट लेना होता है। तो एक मैसेज मेरे ख्याल से पब्लिक को कन्वे करना पड़ेगा, अपने MLA को और MP को, कि अगर आप नेताजी की बात करोगे तो वोट देंगे आपको, हम लोग वोट देंगे बिल्कुल। वोट देंगे। जहां वोट मिलना शुरू हुआ इसके नाम पे बंगाल में, उसके बाद देखना मैं माहौल मैं कांग्रेस के लोग सपोर्ट करेंगे हमारे को, देखना। और मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं कांग्रेस सपोर्ट करने को तैयार हूँ। हम सुभाष बोस के फॉलोअर हैं, हमें अपने काम से मतलब है। जो भी आदमी नेताजी का नाम लेगा किसी उस आदमी से नहीं है जो सुभाष बोस से सपोर्ट करेगा, हम उसे सपोर्ट करेंगे। हम तो सबके पास जाते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। तो ये तो वो एक पब्लिक को एक अवेयरनेस तो करनी पड़ेगी। सिर्फ मुंह से बोलने के लिए कि भैया हम बड़े फॉलोअर हैं और 23 जनवरी को हमने जाके झंडे में सलूट मार दिया, भैया उससे काम नहीं चलेगा। आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। देखो कैसे सरदार पटेल के फॉलोअर्स ने मूर्ति बनाई है ना इतनी बड़ी, आप बना के दिखाओ नेताजी की कलकत्ता में, ना सब लोग लड़ने भिड़ने के लिए राजी आपसे हो जाएंगे। तो यू नीड टू काउंटर दैट थिंग। यस एब्सोल्युटली, बनाई ना उन्होंने, सबसे बड़ी वर्ल्ड की बना दी, सबसे बड़ी ऊंची। अब उसकी अब आने वाले 200 साल तक सरदार पटेल का नाम रहेगा। मैं भी जब जाऊंगा तो देखने जाऊंगा उसको, क्या देखने जाएगी, पूरे टूरिस्ट जाएंगे। तो ऐसे ही होता है, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे बाबा साहब के फॉलोअर्स ने लड़ी, ऐसे नेताजी के फॉलोअर्स को लड़नी पड़ेगी। और क्योंकि वो सारे फॉलोअर्स जो हैं दिल्ली के अंदर भी हैं, सब जगह हैं, जहाँ हिंदुस्तानी सारे फॉलोअर्स हैं, कहीं मिल जाएंगे आपको नेताजी के। लेकिन सबसे ज्यादा ऑल सेड एंड डन तो बंगाल में ही है, कलकत्ता में ही है ना। मेरा मानना है कि अगर हम लोगों ने साउथ कलकत्ता में, आप कलकत्ता भी छोड़िए, अगर हमको साउथ कलकत्ता से ही सपोर्ट मिल जाए, हम लोग पूरा गेम को उल्टा कर देंगे। लेकिन साउथ कलकत्ता में सपोर्ट हमें नहीं मिला। जो भी मेरे मित्र बने हैं, जो दोस्त बने, इसेंशियली सारे मिडिल क्लास के लोग हैं बेचारे, वो क्या कर सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं है ना, उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास में कोई 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तो नहीं है ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो दैट इज हाउ इट इज। सो वी नीड टू वर्क इन यस। इसलिए मेरे दिल में इतनी पीड़ा है, मैं रोज कभी ये कोविड खत्म हो और हम लोग कलकत्ता वापस आए। सब जगह मेरे को कलकत्ता लगती है वो दुनिया में। अब ये खत्म ही नहीं हो रहा कोविड, क्या करें यार, अब तो मुश्किल हो रही है। कोविड खत्म होगा तभी तो। आपका I'll just take a couple minutes over here। तो मुझे याद है वो आपका जैसे जो प्लेन क्रैश थ्योरी है, and I mean what I'm referring to is the part where the supposed so-called body of Netaji was cremated inside that crematorium। अब मुझे याद है आपके बुक में मैंने पढ़ा था कि it was the body was left inside the crematorium overnight, and the next day morning it was taken। Yes. Not the body. Body was taken to crematorium. It was put inside the furnace. The furnace was, of course, started. Yes, furnace. And next morning, the remains were taken out. Remains were taken. Yes, the remains. Yeah, I mean that's exactly what I'm referring to. So, Dada, मुझे याद है, the moment I read that, I knew that this too is yet another point among all the other points that you've already mentioned, to show that how this story of the so-called body of Netaji being cremated is actually a fake story। मतलब बात ये है कि
बॉडी अगर उतना देर के लिए फर्नेस में रखा जाए, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, उतना में जो द रिमेन्स ऑफ द बॉडी व्हिच विल कम आउट ऑफ द फर्नेस, इट विल बी लाइक फाइन पाउडर, लाइक tiny little pieces. You won't have खत्म हो गया. You won't have a big jawbone and all the other नहीं, big हो सकता है, वो fragments डिपेंड that करेगा ना. वो is पता नहीं वो फर्नेस उस जमाने में कैसा था कि वो बेसिकली वो बिल्डिंग उन्होंने तोड़ दी है. वो बिल्डिंग वहां अभी है. yes. आप वो तो है कि लेकिन था कि फर्नेस में जलाया गया था और उसके वो तो उन्होंने जो डिटेल दिया है कि ऑलमोस्ट चूरा निकला था वहां से. चूरा टाइप था, लेकिन कुछ हड्डियों के टुकड़े थे और उन्होंने बुद्धिस्ट कस्टम से वो निकाल के उन्होंने किया. जब वो बुद्धिस्ट कस्टम की बात आ गई तो ये पता लगा कि साहब ये अस्थि किसी बुद्धिस्ट आदमी की, इसका मतलब वो जापानी सोल्जर था. एक क्लू था कि वो बुद्धिस्ट. हाँ, बुद्धिस्ट कस्टम में फॉलो. Yes, and that very point that some of the bone fragments were big in size, that is just impossible. I mean, that is yet another point through which we can say that. वो अलग कहानी. मेरा कहने का मतलब है कि देखो हड्डी तो उनकी है नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं डीएनए टेस्ट के फेवर में इसलिए हूँ कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे मालूम हड्डी उसकी नहीं है. और कुछ लोग खासकर जो नेताजी के फैमिली के लोग हैं, उन्होंने एक इम्प्रेशन क्रिएट करना शुरू किया है जब ये अपना भगवान जी का फैसलाबाद का इशू जो है पब्लिक में आना शुरू हुआ बड़े लेवल पे. तो उन्होंने कहा जी इसकी डीएनए टेस्ट करवाओ. खुद तो इन्होंने पहले डंडा नहीं किया गवर्नमेंट को. देखो अगर फैमिली उसकी डंडा गवर्नमेंट को कर दे डीएनए पे, गवर्नमेंट को कराना पड़ेगा. मजाक की बात नहीं है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. तो पॉइंट ये है कि इन्होंने डंडा नहीं किया गवर्नमेंट को तरीके से. उसके बाद में सॉरी ये था कि आप टेस्ट करवाओ, लेकिन एक पब्लिक में एक इंप्रेशन क्रिएट किया कि हम तो बड़े साइंटिफिक लोग हैं, हम लोग तो डीएनए टेस्टिंग की बात करते हैं और ये लोग बाबाओं की बातें करते हैं, साधु महात्मा की बातें करते हैं. तो उस चीज को हटाने के लिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे कोई डीएनए टेस्टिंग से कोई परहेज नहीं है. आप करवाओ, हम पूरे फेवर में हैं. मुझे पता है हड्डी उसकी नहीं है, तो कभी मैं तो शुरुआत से फेवर में डीएनए टेस्टिंग के. डीएनए टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है तो एंथ्रोपोलॉजिकल वो टेस्ट करवाओ हड्डियों का, उसका जो कराना करवाओ टेस्ट. ओनली कंडीशन जो है कि इट हैज टू बी डन इन अ फॉरेन लैब. देसी लैब पे कोई टेस्टिंग नहीं होगी. देसी लोगों का कोई विश्वास नहीं है. तो आपको पता है कि ये लोग रिपोर्टें झूठी दे देंगे उठा करके, जो हुआ था. तो देसी लैब में टेस्ट नहीं होगा. मेरे ख्याल से अब नेताजी की फैमिली की स्ट्रेटेजी होगी किसी देसी लैब में टेस्ट करवा दो उसका, सीएफएसएल टाइप वो जो रिपोर्ट निकालते हैं. ये इनका प्लानिंग मेरे ख्याल से वही है कि अब टेस्टिंग करवा दो यहाँ पे, और एक क्या नाम है सीएफएसएल कलकत्ता से वो निकाल देंगे रिपोर्ट 6 महीने पहले ही, टेस्टिंग से पहले वो स्टोरी प्लान करवा देंगे गवर्नमेंट मीडिया में, और फिर कहेंगे नेताजी की अस्थि वहां से लेकर आ जाओ. उसको लेकर आ जाएंगे यहाँ पे, पूरे शहरों में घुमाएंगे फैमिली के लोग वहाँ पे थोड़ा सा. तो वो बेसिकली दैट इज अ स्ट्रेटजी. जबकि यही फैमिली ने नहीं आने दिया इतने साल तक. हाँ जी. अच्छा दादा, आई मीन I just want to know your perspective. I want to give a message कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं, मैंने फेसबुक पे नीचे एक लिंक डाला है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आप भी यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आराम से. आई थिंक ज्यादातर लोग को इस पर्टिकुलर मीडियम का पता नहीं है. तो अभी अनिरुद्ध मुझसे बात कर रहा है, बट एनीबॉडी एल्स कैन कम इन, आई हैव नो प्रॉब्लम. और नहीं आएगा तो मैं बंद कर दूंगा थोड़ी देर में ये. हाँ जी अनिरुद्ध बताओ. लोग अपने टेस्टिंग जारी रखते हैं. हम तो ऐसे भी ये साउंड टेस्ट, मैं तो वैसे भी ये साउंड टेस्टिंग के लिए मैंने किया था एक्चुअली सेशन. I feel the sound issue has been solved totally. Thanks to you. I don't hear any echo. Thanks to you, it has been resolved. So you helped me a lot. Yes. So I mean, the so-called remains in Rinpoche temple. I suspect there are. I mean, maybe people, bones of other people have been added over time. Do you think? So I'll tell you what, that doesn't concern me. I know those are not Netaji's remains. Yes. If you do a scientific test, that is what will show. So whether somebody has put in a different kind of bones here and there, because there are some conspiracy theories that somebody put the remains of somebody else there in later years. So if that is there, the scientific test will figure it out. So we should not worry about it, no, because the testing will show if these are not his remains. Yes. Actually, in this regard, we need to insist on that the testing must be done in foreign labs. 2-3 labs में करवाओ, एक अमेरिका में करवाओ, यूरोप में करवाओ, तीसरा देसी से करवाना करवा लो, लेकिन देसी लैब में अकेलौते में नहीं होगा. इस मामले में स्वदेशी नहीं. Actually, in this regard, this was just my personal thought process. I mean, it may be totally wrong, but anyways, so what I was thinking is that, like, just in case if someone else is born, for example,
For example, I mean, just an example, there's someone else's bone fragments are inside that box. So I was wondering if, in addition to the anthropological test and the DNA test, which will fail in any case because those are cremated remains, I was wondering if we could do a radioactive dating test to find the age of the bone fragments. And what happened was, हाँ, वो शायद एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट में सारा वो डेट वेट निकाल देते हैं, बट एक्चुअली वो पूरा तो निकालना मुझे पता नहीं कि वो यू कैन नॉट, आई डू नॉट नो, साइंटिस्ट कैन टेल बेटर, बट एग्जैक्टली हाँ, सी वो अगर वो डेट निकालते भी है ना स्केलेटन की, मतलब हड्डी की, तो वो 30-40 साल तो ऊपर नीचे ऐसे हो जाते हैं. बट इन एनी केस दिस इज अ जॉब फॉर द एक्सपर्ट्स. तो मेरे ख्याल से एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट वगैरह वो सब करेंगे तो उनको शायद निकल जाएगा. सो वी कैन गेट सफिशिएंट शो की हड्डी किसका है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है? नहीं कर रही, नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि हड्डी उसकी है नहीं है, उन्हें मालूम है उसके नीचे नहीं, मालूम है, इसलिए तो नहीं कर, इसलिए तो नहीं कर. एक्चुअली मतलब मैं आपको लिखकर, आपको पता है वो श्यामजी वर्मा जी थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनकी अस्थियां मेरे ख्याल से कहीं यूरोप में कहीं पड़ी हुई थी. मोदी जी उसको अपने सर में रख करके भारत में लेकर आए बड़ी इज्जत से. आपको पता है अस्थियां नेताजी की होती, आप मुझसे लिखवा लो, प्रधानमंत्री इसको उठा करके लेके आके पूरे कलकत्ता में घुमाता श्रद्धा से. ये इतना जबरदस्त सिंबॉलिक और इसकी इतनी जबरदस्त वैल्यू है कि कोई भी छोड़ेगा नहीं. द वेरी फैक्ट कि जब पंडित जी वहां पे गए रंकोजी टेम्पल में, तो वहां लिखने के टाइम पे कुछ और लिख करके गए. इंदिरा गांधी वहां पे गई तो कुछ और लिख करके, सुभाष बोस का नाम नहीं दिया. अटल बिहारी वाजपेयी गया तो वो भी कुछ और लिख करके आया. तो अगर 3 प्रधानमंत्री वहां जाकर के गए लेकिन कुछ और लिख करके आ गए, और उसके बाद में 2-3 प्राइम मिनिस्टर ने डॉज कर दिया. मनमोहन सिंह ने डॉज किया, वो वहां पे गया लेकिन रंकोजी टेम्पल में नहीं गया. मोदी के पीछे लोग पड़े थे, आओ आओ आओ, एक उसका अपना संगी उसको बोल रहा था वहां आने के लिए. मोदी वहां पे गया, सबसे मिला, INA के लोगों से मिला, सब कुछ किया, रंकोजी टेम्पल में नहीं गया. इसका मतलब सबको समझ में आ जाना चाहिए, समझ का मतलब क्या. That is very clear. The government knows about it. लेकिन ये कि वो what the sleeping dogs lie जो idiom है इंग्लिश में, उसका मतलब क्या होता है? तो ये कि ये अनिर्बन जिस तरह के सवाल जवाब आप कर रहे हो, इस तरह की डिस्कशन मेन स्ट्रीम चैनल्स में स्टार्ट हो जाती हैं बंगाल में. वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यही बातें पार्लियामेंट में करना शुरू कर दें, या आप ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं. सवाल तो कुछ नहीं होता. आप एक सवाल पूछते हैं, गवर्नमेंट रेडीमेड आंसर चेप के चली जाएगी. आप उसको क्वेश्चन प्रॉपर उसको रेज करो और ये सवाल पूछो क्यों आप टेस्ट नहीं करवा रहे, ये नहीं है, प्रधानमंत्री जवाब दें. प्रधानमंत्री अगर जवाब नहीं देगा तो तुम पार्लियामेंट को रोक दो. धरने होते हैं ना पार्लियामेंट में, इसमें क्यों नहीं कर सकते? बहुत बड़ा इशू है, सेंटिमेंटल इशू है. तो जिस तरह का इंटरेस्ट लेवल कॉमन पब्लिक में है इसको लेकर के, वो इंटरेस्ट लेवल हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में और बाकी लोगों में आ जाएगा. उस दिन से ये रेजोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा. एक ही बात का फायदा ये सिस्टम उठा रहा है कि इसमें पीछे फोर्स नहीं लगी. इसके पीछे जैसी फोर्स पटेल के पीछे है या अम्बेडकर के पीछे है, वो फोर्स सुभाष बोस के केस में नहीं है. जिस दिन वो फोर्स आ जाएगा तो लाइन पे आ जाएंगे सारे. अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मतलब इज इट एग्जैक्टली बिकॉज दिस पॉलिटिकल इंसेंटिव इज नॉट देयर, क्योंकि नहीं है इसीलिए पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इंसेंटिव. जो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इंसेंटिव, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट सोशल सर्विस. इंसेंटिव है, वो मिलेगा तो करेंगे. वो अपना दे विल वे एंड प्रोवन कौन ये काम करने का फायदा होता कि नहीं होता. बिल्कुल, इसीलिए वो राम कथा संग्रहालय में जो गुमनामी बाबा के जो कुछ आइटम्स डिस्प्ले पर रखे गए, मतलब इसको इसीलिए ओपन नहीं कर रहा, बिकॉज इट इज नॉट. हाँ, बिकॉज देयर इज नो, क्या नाम है उसमें एक्चुअली वो नहीं है ना, उसमें उन्होंने क्या नाम है बवाल नहीं मचा ना. बट एडिशनली एट दिस आप मुझे बताओ सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में अगर बवाल नहीं मचता तो इतनी इंक्वायरी होती क्या? बिल्कुल. जब तक ढोल नहीं पिटेंगे लोग सपोर्ट करने क्यों आएंगे आपको? तो बवाल तो मचना जरूरी है. बवाल तो प्रीरिक्विजिट है हर चीज की यहाँ पे. So basically they just want to avoid the controversy. Obviously dividing, they know just don't want to get into opening. There's nothing in it. उनको कोई फायदा वैदा कुछ होगा नहीं इसमें, उल्टा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होंगी. और ऊपर से वो गांधी ब्रांड में प्रॉब्लम होगी. गांधी ब्रांड उनका फेवरेट ब्रांड है, वो चलता है अच्छा, उसका बना बनाया माल है, उसे क्यों खराब करे वो लोग. और फायदा उसको नजर नहीं आ रहा किसी को इसका करने का, तो वो नहीं कर रहे. और बवाल कोई मचा नहीं रहा. बवाल मचाओगे तो उनके तो समझ में आएगा, एकदम से रिएक्ट करेंगे. तो जिस दिन इस पे लोग रिएक्ट करेंगे उस दिन से केस खुलना शुरू हो जाएगा, है ना.
चलो ठीक है, गुड नाइट टू यू एंड चलो ओके, गुड नाइट दादा। चलो दोबारा आपसे बात करेंगे। हाय तने, आपका ये आपका माइक हटाइए। ठीक है, गुड टू गो। Are you audible? Very much. Is it audible? Very much. Where are you from? Tanan sir from Kolkata. किधर कलकत्ता में, कहाँ से? Where exactly? टॉलीगंज में। टॉलीगंज। अभी आपसे पहले वो डमडम वाला आया था अभी, तो डमडम का तो आपकी मेट्रो की लाइन का ना एक स्टैंड आपका टॉलीगंज का एक्सट्रीम में था और वो उसका ऑपोजिट में डमडम पड़ता है। तो मैंने कई बार वहाँ पे अप डाउन किया। मेरा घर तो श्यामनगर है, आपके साथ बात हुआ था लास्ट दिन। अच्छा, नहीं मैं उसकी बात करूँ कि आपसे पहले जो आया था फ्रेंड वो डमडम में था, तो अच्छा। उससे ये था कि आपका डमडम का और टॉलीगंज का दोनों का बिल्कुल एक ऑपोजिट पड़ता है ना वो। अगर आप मेट्रो में जाएंगे तो टॉलीगंज से स्टार्ट होती थी और डमडम में खत्म होती थी लाइन जाकर। हाँ जी, बताइए आपका सवाल। सवाल ये था कि मुखर्जी कमीशन, थोड़ा सा ये अपना स्पीक उसको माइक्रोफोन को अपना पास पर रखो। नो, इट्स नॉट ऑडिबल। आर यू गेटिंग माय वॉइस? आई एम गेटिंग बिकॉज आई हैव गॉट स्पीकर्स। पब्लिक को पता नहीं, मुझे तो सुनाई देगा। मेरे पास में तो वूफर लगा हुआ, स्पीकर लगे हुए तो बड़े बड़े, पब्लिक को ना सुनाई देगा। हाँ, इट्स ओके। हाँ, तो सवाल जो है ड्यूरिंग द मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट, मुखर्जी कमीशन, तो it heard that Justice Mukherjee was not happy with the certain report provided by the Sarkari lab, the government lab, and the handwriting experts. So the my question is, then if there were several loopholes, then why Justice Mukherjee accepted that? नहीं वो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बाद में किसी पर्सनल टॉक में कहा था, पर्सनल डिस्कशन में कहीं हो रही होगी, कि इनका जो बिहेवियर था हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स का जब उनको एग्जामिन किया। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक बात उन्होंने किसी को बात करते करते किसी और कॉन्टेक्स्ट में कही थी कि मेरी ज़िंदगी के 40-50 साल मैंने कोर्ट कचहरी में बिताए हैं और मेरे सामने कोई आदमी खड़ा होकर बात करता है तो 2 मिनट लगते हैं ये देखने में कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो इतना समझ आ गई है बुढ़ापे में करते करते चीज़ों में। पहली बात उन्होंने बोली थी किसी और कॉन्टेक्स्ट में। तो ही कुड सी कि जिस तरह का बिहेवियर था एक्सपर्ट्स का, एक्सपर्ट्स ने रिपोर्टें दी थी। पहली बात मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट दी गई कमीशन को, फिर उन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था एग्जामिनेशन के लिए बिफोर कमीशन। तो जब बीलाल कपूर की जो रिपोर्ट थी प्राइवेट, जब बीलाल का एग्जामिनेशन हुआ विज्ञान भवन में, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। बहुत से लोग आजकल एक्सपर्ट पैदा हो गए हैं, बहुत सारे, जिनको कोई पर्सनल नॉलेज इस केस की नहीं है। कुछ मैं देखो नेताजी के परिवार के लोग बैठ करके मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में गवर्नमेंट की फाइलें पढ़ के गलतियां निकाल रहे हैं। जब मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई, मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़ा था। मुझे पर्सनल नॉलेज है वहाँ पे क्या हुआ था, क्या चीज़ें क्या नहीं है। तो जिसको उस चीज़ का पर्सनल नॉलेज नहीं है वो उसने का जजमेंट ना दे तो अच्छी बात है, वो भी सरकारी रिपोर्टें पढ़ के उसके बारे में। वो जो उनकी जो रिपोर्ट आई थी, उन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया एग्जामिनेशन के लिए। तो जब एक्सपर्ट एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पर आया तो कपूर साहब बहुत कॉन्फिडेंटली बात किए, सारे पॉइंट के आंसर उन्होंने बड़े आराम से दिए। वो बंदा एक्सपर्ट था, वो ही यूज्ड टू गिव लेक्चर्स टू जजेस, अदरवाइज टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक हैंडराइटिंग के सेगमेंट में। तो वो वहाँ पे उसने ये बातें बोली और उसके बाद जब इनका नंबर आया सरकारी एक्सपर्ट्स का, उन लोगों की हवा खिसकी हुई थी और वो सवाल का जवाब नहीं दे सके ढंग से। इनफैक्ट मेरी एक जस्टिस मुखर्जी से कंप्लेन थी। जस्टिस मुखर्जी ने जो मंडल जो आया था, जो सेंट्रल आपका लोकल गवर्नमेंट, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्सपर्ट था, जो मंडल को बातें उन्होंने बोली हैं वहाँ पे जब उसकी एग्जामिनेशन करते करते, अगर ये बातें वो लिख देते रिपोर्ट में तो बहुत अच्छा रहता। उन्होंने उसकी वहाँ पेंट उतारी थी और ये भी कहा था कि तेरे बारे में अगर मैं किताब में रिपोर्ट में लिखूंगा तो तेरी नौकरी चली जाएगी। इस तरह की घटिया रिपोर्ट लेके तो मेरे पास में आ गया। तो मेरी कंप्लेन है कि साहब आपको लिखना चाहिए था रिपोर्ट में, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट में गड़बड़ थी, ये मुखर्जी को समझ में आ गया था। लेकिन अगेन अगर आप उनकी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उन्होंने मेंशन किया कि मैं कोर्ट नहीं हूँ। कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो होती है वो कोर्ट नहीं होता, वो बेसिकली एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी होती है। उसका काम इस तरह की बातें करना नहीं है। तो उसने कहा मैं वो नहीं, उस पर नहीं जाऊंगा, जो मेरे सामने आएगा मैं उस चीज़ को डील करूंगा, उस चीज़ की बात करूंगा।
तो वो इनको मालूम था। तो बाद में उन्होंने ये बात रिफ्लेक्शन में बोली थी किसी डिस्कशन प्राइवेट टॉक के अंदर कि मुझे मालूम था कि ये गड़बड़ हुआ है और बाद में समझ भी आ गया था, लेकिन मेरे पास में पावर नहीं थी कुछ करने की। फॉरेन के एक्सपर्ट को तो दे सकते थे नहीं, गवर्नमेंट की कमीशन बनी है तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट को उन्हीं को देंगे, एक्सपर्ट को देंगे ना, तो फॉरेन को तो नहीं दे सकते वो लोग, तो पॉसिबल नहीं था। दूसरा कि आप इस चीज की बात आज कर रहे हैं 2020 में, जब हम लोगों ने इतना और लोगों ने बवाल खड़ा करके लोगों को, पब्लिक को अवेयर कर दिया। जब 1999 से लेकर 2001 तक जब वो कमीशन फंक्शन कर रही थी, पब्लिक को उसमें धेले का इंटरेस्ट नहीं था। मुखर्जी कमीशन की जो हियरिंग होती थी कलकत्ता में महाजनी सदन में, उसको सुनने के लिए कोई नहीं जाता था, आपके मीडिया में कोई खबर नहीं आती थी। तो मुखर्जी ने 50 बार बोला कि सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है, बंगाल में तो कोई बवाल नहीं मचा उसको लेकर के, तो पब्लिक में इंटरेस्ट भी उस टाइम पे नहीं था। तो शायद जस्टिस मुखर्जी के काम को समझने के लिए हमको उस टाइम पे जाना पड़ेगा कि 2001 में क्या माइंडसेट था, क्या कहानी थी। तो उस सेंस में तो उनको मालूम था, लेकिन वो कर नहीं पाए। दैट इज माय आंसर टू योर क्वेश्चन। वो कर नहीं सके, उनके पास पावर नहीं थी ना, वो ही कुड नॉट हैव गिवन द रिपोर्ट टू अ फॉरेन एक्सपर्ट। क्योंकि कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंडर में वो ऐसे नहीं कर सकते कि मैं हैंड राइटिंग लूंगा और टेस्ट करने के लिए अमेरिका भेजूंगा, पॉसिबल नहीं है, इतना बजट भी गवर्नमेंट क्लियर नहीं करेगी। Now the funny thing is that कि जब जहां तक मैं पढ़ा हूँ आपकी बुक में या फिर डिफरेंट जो भी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल है अभी, so when Mukherjee Commission was conducted, that point of time they have called a few of the Bose family members several times, but they didn't attend. But now the same people are taking point out to Justice Mukherjee that there is something wrong. The report there is some loophole. वो जो उन्होंने मेंशन जो वो किया, वो आपका वो शिशिर बोस एंड कंपनी, वो जो कांग्रेस पार्टी का जो फैक्शन है फैमिली का, वो कि उनको जब बुलाया गया तो वहां पे वो नहीं आए। इनफैक्ट शिशिर कुमार बोस ने चिट्ठी लिख के बोला कि मेरे को इसकी कोई नॉलेज नहीं है, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस केस। उनकी मिसेस ने भी ये आंसर दिया कि मुझे कोई, मैं तो बच्ची थी, मुझे मालूम नहीं है क्या केस क्या है, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस केस। तो वहां आप उनको जब बुलाया जाता है तो आप बोलते हो कि हमारे को नॉलेज नहीं है, लेकिन मीडिया में जाकर बोलते हैं कि वो कैसे मर गए थे। सो दैट इज द थिंग दैट द फैमिली डिड, सो दैट इज व्हाई मुखर्जी वाज नॉट वेरी हैप्पी विद देम एंड इट शुड बी एबल टू। और बाकी लोग फैमिली के 2-4 लोग तो आए थे ना, प्रदीप बोस ने एफिडेविट दिया, सूर्य कुमार बोस ने एफिडेविट दिया, सुब्रतो बोस ने एफिडेविट दिया, और उनको डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन जो उनको उनसे बन पाया उन्होंने किया, उन्होंने दिया था उन्होंने। लेकिन जो मेन पकड़ करने वाले थे ये थे आपके ये जो नेताजी रिसर्च ब्यूरो जो दुकान है आपके कलकत्ता में, वो कमीशन ने बुलाया और बोला जी हमको नॉलेज नहीं है। पीछे टीवी चल रहा है आपके क्या? कौन है आपके पीछे टीवी चल रहा है क्या? आपके टीवी की आवाज आ रही है। Sorry sir. नहीं तो बिकॉज़ वो साउंड पकड़ा है हम लोगों ने। आज ये जो मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, ये मेरा टेस्ट हो रहा है, ये तो मेरा वो कि मैं बेसिकली मैं साउंड को ही चेक कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो तो वीडियो से काम चलता था, ऑडियो शुड बी वेरी क्लियर, और ऑडियो शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम फोन और डेस्कटॉप। मैं डेस्कटॉप से कर रहा हूँ, मेरे पीछे स्पीकर लगे हुए हैं, तो स्पीकर कई बार क्या होता है कि आपका जो ये जो माइक्रोफोन है वो स्पीकर की आवाज पकड़ लेता है, तो शायद मेरे एंड पे प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको कुछ रिजॉल्व किया कि मैंने अलग से उसको अलग से हेडफोन पे लगाया। तो एक बार ये सिस्टम अगर प्लेस में आ जाए, जैसे अभी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आई कैन सी यू, आई कैन टॉक टू वेरी क्लियरली, जो मैं फोन पे नहीं कर सकता, फोन पे मजा नहीं आता करने में। एक बार ये सिस्टम प्लेस में हो जाएगा तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन रात को आकर के अड्डा मारूंगा ऐसे करके, और डायरेक्टली लोगों से सवाल साउंड इज गुड एंड पिक्चर को करेंगे, देन हम लोग प्रेजेंटेशन भी ऑनलाइन करेंगे बीच में, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना डॉक्यूमेंट दिखाए लोग बाज नहीं आएंगे। तो मैं स्पेसिफिकली आई विल टेक अप सम पॉइंट। मान लीजिए कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में गलतियां हैं, अभी मेरा प्रॉब्लम ये कि मेरे को आंसर देने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, आंसर सब चीजों में मेरे पास पड़ा उनसे बहुत आगे, लेकिन है कि टाइम नहीं है, मैं कितने लंबी पहुंच सकती हूँ, मैं हर चीज का आंसर दूंगा ना। एक मैंने कोई बात बोली कि अमेरिकन ने ये कहा था, तो एक्सपर्ट पैदा हो गए, वो कह रहे नहीं आपने डॉक्यूमेंट को ऐसे पढ़ा। अरे भैया वैसे ही पढ़ा है, 4 चीजें और पढ़ी हैं, लेकिन मेरी लिमिटेशन है ना, मैं एक फेसबुक की पोस्ट में पूरी राम करके ना बता दूंगा।
अब चीज़ों की डायरेक्ट नॉलेज है, मैं मुखर्जी कमीशन के सामने था, मुझे मालूम है वहाँ पे क्या हुआ है। आप लोग की तरह बाद में फाइलें पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। सरकारी फाइलों में गलत फलत बातें लिखी गई हैं बस, जो पढ़ के आज मार्क्सवादी फैमिली वाले बता रहे हैं कि प्रियंका मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में गलतियां थी। आपने गवर्नमेंट की फाइलें पढ़ी हैं, वो फाइलों में गलती है। ये स्तर है, बताइए। और एक और एक प्रॉब्लम है, ये जब ये भगवान जी का जो एंगल है, now Bhagwan ji passed away on 16 September 1985, and there are several eyewitnesses and all the proofs you have mentioned in your book also. I have your book. I can see So- it on the back. Right. So now the point is, now few people, so-called researchers, are claiming that Bhagwan ji, it was another disappearance or another escape. So still he is alive, but the problem is that now इस तरह की जो बात है, ये entire जो ये केस है इसको खराब कर दे रहा है। चंद्रचूड़ ने एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाकर डाला इसके ऊपर, इस पूरे पॉइंट में उसने हाँ, बड़ा अच्छा video, and there are several there are few people who are arguing like, I mean, personal attack, etc., talking baseless things. Now the my point is that if this kind of things will this kind of rumors will going around over here, baseless, so do you not think that it is getting I mean, it will hamper the I mean actual issue? नहीं, वो Because this is serious rumor नहीं, वो rumor फैलाने का मोटिव भी वही है कि हैम्पर करना है। दैट इज द मोटिव। दे आर सपोज्ड टू दिस थिंग, उनका इंटेंशन ये करने का ही है कि इसमें आप केस को खराब करो। ये किसी बड़े भाई ने, कोई मेरे ख्याल से किसी तरह में किसी इंटेलिजेंस के वाले ने किसी के दिमाग में आया होगा कि इस केस को ड्रेन करने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप पब्लिक में इस बात को बोलते रहो कि वो जिंदा 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 करके, और इसका बोलने का बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस केस को कभी सुनेगा नहीं। तो जानबूझ के उस बात को रिपीट करना, जो चीज़ आप साबित नहीं कर सकते, जो चीज़ कभी मतलब ये बात बोलना सुबह शाम की जिंदा 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 करके, उससे क्या कि कोई पढ़ी लिखी जमात इस केस को हाथ ही नहीं लगाती, हंसते हैं पूरे केस के ऊपर, और केस कहीं पहुंचा नहीं। तो हम लोगों ने ये पापड़ बेल के अब इसको कहाँ से कहाँ फिल्म बनवा दी, ये कर दिया वो कर दिया, हम उसको उस लेवल पे लेकर आए। ये तो आप बताओ ना, ये पहले कौन सा टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके बारे में खबरें आती थी इस केस के बारे में? ये लोग जो बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये लोग कितने साल से क्या घुट्टी पिला रहे थे लोग, मुखर्जी कमीशन को तो साबित नहीं कर पाए ये लोग। वहां भी अगर मैं ना होता तो कमीशन का रिजल्ट कुछ और आता। मैं अपने मुंह से अपने आप तो अपनी तूती नहीं बजाऊंगा ना कि मैंने क्या काम किया कमीशन के सामने, कि जिसकी वजह से कमीशन में बच गए। अगर मैं ना होता तो कमीशन की इंक्वायरी का रिजल्ट कुछ और निकलता। तो ये तो कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ साबित नहीं कर पाए। अब बैठ के वो कहानी में वो बेवकूफी बात है, गाली, अब आपने खुद ही बोला कि गाली गलौज पे उतरा है, ये कोई आर्गूमेंट है? पहली बात, ये कोई आदमी ये बोल रहा है कि वो जिंदा, तो भैया हम तो सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही हूँगा। अगर ये दावा है कि भगवती जिंदा है, मुझसे ज्यादा खुशी किसको होगी? हम तो नाचना शुरू कर देंगे सड़कों में निकल के। सबूत जिसने देखा उनको, उसके बाद में 16 सितंबर 18 के बाद में मुझे एक आदमी का नाम बोलो जिसमें मिले हो। और जो लोग ये बातें कह रहे हैं वो कभी वहां गए नहीं फैजाबाद में, उन्हें पता ही नहीं है। जिसके बेसिस पे कह रहे हैं वो आदमी वहां पे नहीं था कोई। कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स स्टोरीज और अजम्पशन लेके ये थ्योरियां फ्लोट कर रहे हैं, सिर्फ केस को डिस्ट्रैक्ट। ये अल्टीमेटली तो मेन जो केस इतना दिन के बाद जो मेन स्ट्रीम में आया है ये इशू, उसके ऊपर मूवी बनाया, आप लोगों ने हेल्प भी किया है। ये तो कहीं ना कहीं तो वो तो हैम्पर हो रहा है बहुत, इसीलिए तो लोग ये फिल्म आने से और किताब आने से लोगों को तो जेलेसी है। वो एक तो जेलेसी के चक्कर में के लोग बोलते हैं, बाकी लोग जो आप कह रहे हैं, जो लोग वो हैम्पर करने के लिए आए हैं, वो लोग, मैं आपको बताऊं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, हैम्पर करने के लिए आए हैं। आपने जुगलबंदी का नाम सुना? कि जुगलबंदी क्या होती है, आपको पता है? जुगलबंदी का मतलब समझते हैं टर्म? जुगलबंदी होती है कि मेरे पास में तबला, आपके पास में सितार है, दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आप सितार बजाएंगे, मैं तबला बजाऊंगा, तो दोनों अलग अलग म्यूजिक है, अलग अलग उसकी वो है, मतलब साउंड है, लेकिन दोनों को मिला दोगे तो म्यूजिक अच्छा बन जाएगा। तो अगर किसी आदमी ने ये साबित करना है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी, उससे करने के दो बड़े तरीके।
पहला तरीका ये है कि आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ के लेकर आओ जिसका लिंक किसी यूरोप अमेरिका के साथ हो, कि मैं बीबीसी में था, मैं हार्वर्ड में पढ़ाता हूँ, है, मैं बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ, और वो आके आपको चुन चुन के आपको अंग्रेजी नाम गिनाए कि डॉक्टर योशिमी ये बोलता है, वॉटसन ये बोलता है, वो ये बोलता है, ये रिपोर्ट ये बोलती है, अमेरिकन ने ये कहा था, तो उससे लोगों को लगे हाँ ये तो ठीक बोल रहा होगा, ये इतने बड़े बड़े नाम गिना रहा है साहब लोगों के, तो ठीक बात बोल रही होगी। तो वो सबसे अच्छा तरीका है ये साबित करने का। जैसे आशीष है कि मैं बीबीसी में नौकरी, मैं बीबीसी को बड़ा बैकग्राउंड है उसका करके लंदन में बैठे हुए हैं, वो ये नहीं बोलता कि मैं कांग्रेस पार्टी का चमचा हूँ, अपना प्रेजेंटेशन दिया कि मैं जो हूँ उस तरह का, मतलब वो एक इमेज क्रिएट करना कि भाई वेरी फैक्ट वो लंदन में बैठा हुआ है, उसकी इमेज यहाँ पे अच्छी है हिंदुस्तान के, वो उसको वो एक तरीका है। इसी काम को करने का एक और तरीका है, जैसे कान मेरे को ये पकड़ना हो तो इसकी पकड़ने के दो तरीके हैं, एक तो ऐसे पकड़ लूंगा और एक ऐसे पकड़। तो ये तरीका ये है कि मैं आ जाऊं फेसबुक में या मैं आ जाऊं यूट्यूब में और सुबह शाम बोलना शुरू कर दूं कि नेताजी जिंदा है, और वो जब मैं सुबह शाम बोलूंगा कि वो जिंदा है, आने वाले हैं, वो भी लड़ाई में लगे हुए हैं, अभी ये लड़ाई चल रही है उसमें उनका हाथ है, फलाना ढमकाना, ऐसी बात उल्टी सीधी वाहियात बातें करना स्टार्ट कर दूं, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अगर आपके वीडियो को देखेगा वो कहेगा भैया नमस्कार तुम्हारी नेताजी मिस्ट्री, मैं जा रहा हूँ कहीं और। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की वाहियात बात सुनने के बाद इस केस में इंटरेस्ट नहीं लेगा, और ये एग्जैक्टली उनका मोटिव है कि लोगों को चीज से भगाओ, लोगों को कन्विंस कराओ कि प्लेन क्रैश की थ्योरी ठीक है। प्लेन क्रैश की थ्योरी को साबित करने के दो तरीके हैं, आप इस तरह की बातें बोलो जैसे वो आशीष रे बोलते हैं, या फिर आप उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर दो कि जिंदा है ये है करके, सब लोग जो पढ़ा लिखा आदमी है सारे प्लेन क्रैश पे चले जाएंगे। दैट इज द स्ट्रेटजी, सो इट इज बीइंग डन डेलिबरेटली कर रहे हैं वो आपके जो कल्ट वाले हैं, वो बालक ब्रह्मचारी के, वो यही काम कर रहे हैं, वो लोग केस को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो जानबूझ के लोग कंफ्यूज कर रहे हैं।